Okay, sir. Meanwhile, go through the slide. Hello, Rakesh Sharma. Yes, sir. Hi.
I'll start in 2 minutes. Let others join. Okay. Meanwhile, go through the slide. Today we'll be discussing the third part. What is the third part? Preparation of financial statements from incomplete records. Okay, it's already 4:05. I'm starting. Preparation of financial statements from incomplete records. What do you mean by incomplete records? Any idea, any thought? Anyone? Neelav or Rakesh or anyone? No? No idea? Anyone? No, sir. No. Okay. Incomplete records means either any particular transaction is omitted, omitted to be recorded in the books. मतलब ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स होगा, है कि नहीं? ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया है और ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया है. Understanding? When you are recording only one aspect of any transaction, or you are ignoring the whole transaction, indirectly you are not following double entry concept. You are not following indirectly double entry concept. Then that scenario is called incomplete records. Okay, this scenario is called incomplete records. Understood? Kindly respond so that I can move forward. Yes, sir. Yes, sir. Now, in this case, how do you prepare the financial statements? We have two approaches. Make a note of it in the book. Two approaches. Okay, take down the notes. One approach is, first approach is net worth, balance sheet, or comparison approach. Okay, and the second approach is conversion approach. So what happens here in the first approach? I'll explain. In the first approach, to understand this approach, I'll take one example. Opening capital, okay, add net profit, okay, minus drawings, क्या आएगा? What will you get? Opening capital plus net profit minus drawings, what will you get? Huh? Here we do not have any offline students, okay? So you respond from online. What will you get here? Neelav, Rakesh, and anyone?
Sir, closing capital. हाँ, closing capital. Understood? This is closing capital. So now when incomplete records, when do you have incomplete records, you cannot prepare correct trial balance, I would say, because trial balance may not tally. You might not be having full sufficient information. Yes or no? So in that case, what you have to do, you have to prepare opening balance sheet to find out opening capital. You have to prepare closing balance sheet to find out closing capital. Sir, how can I prepare opening capital? Because you know assets and liabilities. Because transactions might not be recorded, but you know the assets you have in the organization, you know the liabilities you might be having. If you don't know the liabilities, you have to ask the proprietor, because you are preparing incomplete records. Give me the information, I'll prepare the balance sheet at least. Okay? Then from this opening capital and closing capital, I'll take the drawings data also from the proprietor or the partnership firm, and then based on these three figures, I'll find out the net profit. Understanding? Yes, sir. This is Yes, the sir. balancing figure here. Understood this approach? Yes, sir. Yes, sir. This is basically called balance sheet approach because you are preparing two different balance sheets. This is opening balance sheet. This is closing balance sheet. Yes? Or net worth approach, based on the capital, you are finding out the profit. Based on difference between closing and opening capital, you are finding out the net profit. Understand? Yes, sir. This is net worth approach. Or comparison, you are comparing the closing capital with the opening capital to find out the profit. Considering drawings, I am telling. So this approach is called net worth or balance sheet or comparison approach. Understood? Yes, sir. Huh. Yes, sir. Now the second approach, conversion approach. So earlier it is incomplete records. Earlier in the sense, the practice followed by the proprietor who is or the accountant. Okay. You have to convert this into double entry and then prepare the financial statements. This is called conversion approach. सर कैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से डबल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे? एग्जाम्पल मैंने बता दिया है. इधर ओमिट कर दिया ट्रांजैक्शन को, प्रोपराइटर से पूछो कैसे ट्रांजैक्शंस आप ओमिट करते हैं. ठीक है? If the proprietor is going to give any information, based on that information you have to convert the data into double entry. सर कुछ ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहा है. एग्जाम्पल कैश सेल्स में सिर्फ कैश का पोस्टिंग दे देता है, सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं देता है, मतलब ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है. तो उस केस में क्या करना है, वो कैश सेल्स बोल के लिखेगा तो सेल्स अकाउंट में करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट दे दो, तब डबल एंट्री हो जाएगा. इस केस में सिर्फ वन अकाउंट में इंपैक्ट हो रहा है तो डबल एंट्री मतलब सेकंड एस्पेक्ट का इंपैक्ट भी दे दो, तब डबल एंट्री बन जाएगा. अगर पूरा ट्रांजैक्शन ओमिट कर दिया, इंफॉर्मेशन पूछो उनसे, तब उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करो. अंडरस्टूड? दिस इज द सेकंड अप्रोच which is called conversion approach. ये नोट डाउन कीजिए. Any doubts in these two approaches? I'll explain the sum. I'll explain one sum in this approach, one sum in this approach. Okay? You will better understand. Yes, sir. Clear, Rakesh Sharma? Clear, Nilav? Yes, sir. Yes, sir. Very good. 3.3 थर्ड चैप्टर में थर्ड पार्ट में हम आ गया था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. आई एम रिपीटिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब क्या था, वो बंदा
कुछ ट्रांजैक्शंस ओमिट कर देगा, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा. एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, स्मॉल किराना शॉप्स है, स्मॉल किराना शॉप्स होगा ना, वो लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बाकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करे, क्योंकि वो लोग अकाउंटेंट को हायर नहीं करेगा. सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो बोल के किराना शॉप में नहीं बिठाएगा वो लोग, है कि नहीं. सो एग्जाम्पल ये ले सकते हैं. तो उस केस में वो लोग क्या करेगा, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा. एग्जाम्पल कैश सेल्स, सेल्स पार्ट इग्नोर कर देगा, ओनली कैश पार्ट रिकॉर्ड करेगा. मतलब कैश आ गया बोल के नोट करेगा बुक्स में, समझ गया. सेल्स अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा. दूसरा, कुछ ट्रांजैक्शंस इग्नोर ही कर देगा. एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब. क्योंकि किराना शॉप लोग कभी भी देखा है क्या, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब वो लोग को मतलब नहीं है, समझ गया. ऐसा आइदर पूरा ओमिट करेगा या वन एस्पेक्ट ओमिट करेगा. इस केस को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं. इस केस में भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. अंडरस्टैंडिंग. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करो. दिस इज ए चैलेंजिंग टास्क. सो वी हैव टू अप्रोचेस टू टैकल दिस. वन अप्रोच इज नेटवर्थ or balance sheet or comparison approach. Okay. Second approach is conversion approach. First approach, I am repeating once again. You will have the opening capital, you will have the closing capital. He might not be recording all the transactions, but he knows the assets and liabilities. Yes or no? Proprietor के पास जाएगा, देखेगा तो assets दिखेगा, मतलब हमको दिख जाएगा. दिस आर टेंजिबल. वो रिकॉर्ड भी नहीं करेगा, हम इसको एसेस कर सकते हैं. तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो, एसेट्स लायबिलिटीज उनसे पूछ लो, वो बता देगा, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट आ जाएगा. नेट प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा. दिस अप्रोच इज कॉल्ड नेट बैलेंस शीट नेटवर्थ और comparison approach, because you are comparing capitals from two different periods. Understanding. Next approach is conversion approach. From the incomplete data, try to collect as much information as much as possible. Information try to collect from the proprietor and then convert into double entry. In the sense, if any particular transaction is omitted, ask the proprietor for you now pass the entry, make it double entry. Or if any particular one aspect of the entry is missed out, example cash sales में और cash purchases में only cash receive किया, cash गया है, वही record किया है, तो corresponding purchases sales account भी तुम maintain करो, तुम अभी draft करो. Indirectly double entry अभी बना लो. Earlier it was not double entry, now make it double entry and then prepare the financial statements. This is the second approach. Okay. Today we will do sum on this approach. Okay. Tomorrow I will explain the one sum on this approach. Okay. Clear? Neelav, Rakesh, and Yes, anyone? Yes, sir. Huh. Now open this question number 24, page number 238. Rakesh Sharma, read the sum. Mr. Kannan is running a business of ready-made garments. He does not maintain his बिजनेस books क्या of था? रेडीमेड गारमेंट्स. गारमेंट्स का दुकान है, ठीक है. He does not maintain his books of account under double entry system while assessing the income of Mr. Kannan One for second, the one second. final. He does not maintain his books of accounts under double entry system. इसका मतलब है ये क्वेश्चन चैप्टर 3.3 से आया था, समझ गया. हाँ. नेक्स्ट. While assessing the income of Mr. Kannan
हम्म For the financial year 2020 and 2021, हम्म income officer feels that he does he has not disclosed the full income earned by him from his business. हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर आया था, उसका इनकम असेस कर रहा है, ठीक है। देखा है तो बुक्स में जो इनकम दिखाया वो सही नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसको एक भी क्लू मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे पता चल गया होगा? ये वो देखा होगा कुछ ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड कर रहा है, या पूरा ट्रांजैक्शन को ओमिट कर रहा है, तो ओमिट करने से ट्रू प्रॉफिट नहीं दिखेगा बुक्स में, तो ट्रू प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो टैक्स सही से पेमेंट नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चल गया। नेक्स्ट। He provides you the following information. On 31st March 2020, rupees sundry assets 16 lakh 65,000, हाँ, liabilities 4 lakhs 13,000. On 31st March 2021, ओपनिंग बैलेंस है 31 मार्च का ना, 31 मार्च 2020, दिस इज नथिंग बट 1 अप्रैल 2020, यस और नो। और दूसरा क्या था? 31 मार्च 2021. 2021, ठीक है। इधर 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, समझ गया। ये तो एसेट्स, ये तो लाइबिलिटी, सॉरी, लाइबिलिटीज, एसेट्स। मैंने बैलेंस शीट फाइंड आउट कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये तो कौन सा अप्रोच है, क्योंकि हमको एसेट्स दे दिया क्वेश्चन में, लाइबिलिटीज और एसेट्स दे दिया क्वेश्चन में, तो क्लियर कट ये कौन सा अप्रोच था? फर्स्ट अप्रोच है, अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 1 क्या था? बैलेंस शीट एंड नेटवर्थ ए कंपैरिजन अप्रोच, ठीक है। तो ये कंपैरिजन के लिए मुझे पहले ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। मुझे ओपनिंग कैपिटल एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स कितना दिया था बोलो मुझे? राकेश शर्मा कितना दिया था ओपनिंग एसेट्स? हेलो। So 16 lakhs 65,000, हाँ, लाइबिलिटीज कितना है ओपनिंग का? 4 lakhs 13,000. 4,13,000। अभी ओपनिंग कैपिटल कितना होगा देखो, दिस इज लाइबिलिटीज, हाँ, दिस इज एसेट्स, हाँ, इधर कैपिटल आएगा। कैपिटल कितना है देखो, 1665 माइनस 4,13,000 कितना है? 12,52,000। 52,000. दिस इज द ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ओके। नेक्स्ट, क्लोजिंग एसेट्स कितना दिया था? 28,40,000। क्लोजिंग लाइबिलिटीज बैलेंस कितना दिया था? 5,80,000, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ sir. क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा? 22,60,000, है कि नहीं? मैंने बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लिया जो डेटा दिया था उससे। ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, समझ गए? नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो।
Mr. Kannan's monthly drawings for the year 2020 and 21, 32,000. ड्राइंग्स कितना था? 32,000. हम्म, Income, income declared to the income tax officer 9 lakhs 12,000. हम्म, अभी मुझे ड्राइंग्स बताओ, ड्राइंग्स कितना था? टोटल ईयरली ड्राइंग्स कितना है बोलो मुझे? 32,000. नहीं, वो तो मंथली है, मुझे ईयरली चाहिए। मंथली ड्राइंग्स बोला है 32,000, तो ईयरली ड्राइंग्स कितना होगा? 32,000 इंटू 12, टोटल ड्राइंग्स अमाउंट बोलो मुझे कितना होगा? 3 lakhs 84,000. 3 लैक्स 84,000. 84,000, 4,000. 3 लैक्स 84,000 होगा ना? हाँ सर. दिस इज द टोटल ड्राइंग्स। प्रॉफिट disclosed or declared to the income tax officer, प्रॉफिट डिक्लेयर कितना दिया था? 12,000. 9,12,000। नेक्स्ट। During the year 2020 and 21, one life insurance policy of Mr. Kannan was matured and amount received rupees 50,000 was retained in the business. इसको क्या बोल सकता है? What can this 50,000 called? कन्नन का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हुआ, 50,000 आ गया, तो वो बिजनेस में रख दिया। यस, वेरी गुड। एडिशनल कैपिटल होगा, क्या होगा ये? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितना था? 50,000। अंडरस्टूड ना? पर्सनल उसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर हुआ, तो जो अमाउंट आया था 50,000, वो खुद नहीं लिया, खुद लेके घर नहीं गया, वो क्या किया? 50,000 बिजनेस में रखा है। तो बिजनेस में रखा है मतलब इनडायरेक्टली कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 50,000। समझ गया? अभी ओपनिंग कैपिटल कितना था बोलो? हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 12,52,000। वेरी गुड। ओपनिंग कैपिटल से ड्राइंग्स लेस करना पड़ेगा, यस और नो? ड्राइंग्स लेस करो। ड्राइंग्स कितना था? 3,84,000। एडिशनल कैपिटल जो है ऐड करना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल कितना था? 50,000। इसको ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल के लिए, ये तो हमको पता है ऑलरेडी। माइनस, सॉरी, प्रॉफिट, ऐड एक्चुअल प्रॉफिट, ये हमको पता नहीं, बैलेंसिंग फिगर करो, ठीक है कि नहीं? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए ही हमने ये अप्रोच फॉलो कर रहा है। अभी क्लोजिंग कैपिटल कितना था बताओ मुझे? 22 lakhs 60,000. 22,60,000 ना, है कि नहीं? एज पर जो डेटा दिया था 22,60,000 है। अभी इसको ये लेस करके, ये ऐड करके मुझे बोलो कितना आ रहा है बैलेंस? 12,52,000 माइनस 3,84,000 प्लस 50,000, कितना आ रहा है? कितना? 9 लाख 18,000. अच्छा, 9,18,000 आ रहा है। हाँ सर. हाँ, 9 लाख
18,000 आना चाहिए इधर तक ना। तो एक्चुअल कैपिटल कितना है? 22,60,000। इधर तक जो आया था कितना था? 9,18,000 ना। हाँ, अभी 22,60,000 माइनस 9,18,000 कितना है देखो? 22,60,000 माइनस 9,80,000 कितना है देखो? सर 13,42,000। कितना था? 13,42,000। 13,42,000 है सर। एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल को मैंने ड्राइंग से लेस करके एडिशनल कैपिटल ऐड करने से इनडायरेक्टली विदाउट प्रॉफिट, मैं बता रहा हूं, विदाउट प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल इतना आना चाहिए, है कि नहीं? विदाउट एडिंग प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल एक्चुअली टू बी क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज टू बी, मतलब एक्चुअली क्लोजिंग कैपिटल इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कितना है? इतना। डिफरेंस कितना था? 13,42,000। सो दिस डिफरेंस इज डेफिनेटली प्रॉफिट। डू यू एग्री विथ मी नीलव, राकेश शर्मा टिल नाउ? Yes, sir. नीलव, यू ऑल्सो एग्री? Yes, sir. हाँ, 13,42,000 इज द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड। वो कितना डिक्लेयर किया इनकम टैक्स ऑफिसर को? 9,12,000। कितना सप्रेस किया था? सप्रेस मतलब छुपाना। वो इनकम टैक्स ऑफिसर को इनडायरेक्टली कितना छुपाया था? डिफरेंस देखो कितना है? माइनस 9,12,000, 4,30,000 वो छुपाया था, ये माइनस 9,12,000 कितना है? 4,30,000। ये सेम प्रोसेस आप क्लोजिंग कैपिटल लेके रिवर्स इंपैक्ट भी दे सकते हैं। आपका जो आंसर है वो रिवर्स इंपैक्ट क्लोजिंग कैपिटल से लेके ऊपर तक आया था, लेकिन मैं हमेशा इसी मॉडल में करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा होने से अच्छा लगेगा, है कि नहीं? बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल से ही हम स्टार्ट करते हैं ना, तो इसलिए मैंने ऐसा स्टार्ट किया है। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया, बैलेंस शीट भी आ जाएगा अभी, यस और नो? प्रॉफिट भी फाइंड आउट किया, बैलेंस शीट भी आ गया, तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकता है। समझ गए? दिस अप्रोच इज कॉल्ड बैलेंस शीट अप्रोच और नेटवर्थ अप्रोच और कंपैरिजन अप्रोच। वी आर कंपेयरिंग ओपनिंग कैपिटल विथ क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज एट सम डिफरेंट पॉइंट। ओपनिंग डेट पे, फाइनेंशियल ईयर को ओपनिंग डेट पे कितना कैपिटल है, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट पे कितना कैपिटल है। आई एम कंपेयरिंग दिस टू कैपिटल्स टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट, नेटवर्थ और कंपैरिजन अप्रोच। अंडरस्टूड? Yes, Any sir. doubt? Any doubts? If you have any doubts, you can ask me. No doubts, huh? Shall I continue? Yes, sir. हाँ, Yes. वेरी गुड। सेकंड अप्रोच भी जाएंगे, सेकंड अप्रोच में भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 244। Read the sum, Neelav. Yes, sir.
The following is the balance sheet of Chirag as on 31st March 2021. Okay. Balance sheet as on 1st April 2021. On the Hmm. liability side, we have capital account 48,000, Hmm. loan 15,000, Hmm. creditor 31,000. Okay. Assets we have building rupees 32,500, Hmm. furniture rupees 5,000, Hmm. motor car 9,000, Hmm. stock 20,000, Hmm. debtors 17,000, Hmm. cash in hand 2,000, Hmm. cash in bank 8,500. Okay. And total we have 94,000 both side. Hmm. Okay. Very A good. riot, Hmm. Next. a riot occurred on the night of 31st March 2022 in which all books and records were lost. 31st March 2022 बोल रहा है. Yes, sir. Yes. बैलेंस शीट Yes, sir. दिया था 1 अप्रैल 2021. यस और नो. फाइनेंशियल ईयर Yes, sir. क्या होगा? 21-22 होगा. Me too. यस और नो. Yes, sir. हाँ. Riot occurred on 31st March 2022. What do you mean by riot? Riot is some sort of agitation, you can call it as, or dharna, you call it as dharna. Yes or no? Yes, sir. Hue and cry. Dharna. Agitation. Yes or no? हाँ. Yes, sir. The cashier had absconded with the No, no. available A cash. riot occurred on the night of 31st March in which all the books and records were lost. क्या हो गया? Lost. Lost. Books सब lost. ठीक है. धरना हो गया था, मतलब सब डिस्टरबेंस हो गया. कोई बंदा आके अंदर से बुक्स लेके गया. ठीक है. सिस्टम्स नहीं है. बुक्स बुक्स फिजिकल बुक्स लेके गया. ठीक है. नेक्स्ट. The cashier had absconded with the available cash. हाँ. अभी यही अच्छा टाइम सोच के क्या किया कैशियर ने? कैश जो है, कैश बॉक्स में कैश जो है वो लेके गायब. एब्सकॉन्ड इन द सेंस डिसअपियर्ड. So run away. चोर चोर जैसा, मतलब वो कैश लेके चले गया, भाग गया था. अंडरस्टूड. Yes, sir. हम्म. He gives you the following information. उसको पकड़ के First, लेके आया था. वो बंदा अभी ये फॉलो इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि कैशियर उसको ही पता होगा, है कि नहीं? कैशियर मतलब वो इनडायरेक्टली अकाउंटेंट जैसा है, जो भी ट्रांजैक्शन है वो ही रिकॉर्ड करेगा. अभी बुक्स गायब है. बुक्स गायब है तो क्या करेगा? अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है. धरना हो गया, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं ना? छोड़ेगा क्या? धरना हो गया, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, बोलने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नॉट लीव यू. सो ये क्या कर रहा है अभी? प्रोपराइटर क्या कर रहा है? चिराग है प्रोपराइटर. प्रोपराइटर ने पुलिस कंप्लेंट दिया होगा, वो बंदा कैशियर को लेके आ गया. ठीक है. अभी कैशियर कैशियर से कैश रिकवरी करेगा, एक पार्ट है. दूसरा है उससे इंफॉर्मेशन मांग रहा है. अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है देख लीजिए. गो ऑन. his sales for the year ended 31st March 2022 were 20% higher than the previous years. प्रीवियस ईयर से इस ईयर 20% ज्यादा हो गया सेल्स. समझ गया? लास्ट ईयर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज सेल्स है, इस ईयर 1,20,000 होगा. यस और नो? नेक्स्ट. He always sells his goods at cost plus 25%. हाँ, वो क्या बोल रहे? सेलिंग प्राइस भी दे रहे हैं आपको. कॉस्ट अगर 100 रुपीज होगा, वो हमेशा 25% एक्स्ट्रा बेचेगा. तो इधर देखो, इनडायरेक्टली कॉस्ट अगर 100 रुपीज है, इधर देखो एक मिनट, 100 रुपीज अगर कॉस्ट है, वो उसका सेलिंग प्राइस हमेशा 125 होगा. यस और नो? 100 रुपीज इज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस. 25% प्रॉफिट ऐड करके वो बंदा
125 में बेचते हैं हमेशा, तो इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस हमको दे दिया 125 सोच के, मतलब 100 अगर कॉस्ट है, हम एज्यूम कर रहा है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। 20% of the total sales for the year ended 31st March 2022 were for cash. 20% of the sales for the year ended 31st March 2022, मतलब करंट ईयर सेल्स है कि नहीं, करंट ईयर सेल्स में 20% कैश सेल्स है, अंडरस्टैंडिंग, 20% कैश सेल्स है, तो बाकी 80% क्या होगा, बाकी क्रेडिट क्रेडिट यस क्रेडिट सेल्स होगा, ऐसा नो। बाद में एक और वर्ड बोला था, क्या था वो, रीड नीलव। There were no cash purchases. हाँ देर वेर नो कैश परचेजेस, तो मतलब 100% क्रेडिट परचेजेस ही है, समझ गया सर। ये इंफॉर्मेशन सब मैं उस कैशियर से ले रहा हूं, अभी वो बोला है 20% सेल्स ज्यादा है करंट ईयर में लास्ट ईयर से, ठीक है। तब लास्ट ईयर बुक्स अगर ढूंढेगा, लास्ट ईयर का सेल्स मिल जाएगा, तो उस सेल्स से 20% ऐड कर लो, करंट ईयर का सेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो सेल्स में 20% ले लो कैश सेल्स होगा, 80% ले लो क्रेडिट सेल्स होगा। परचेजेस फाइंड आउट करना है, तो देख लेंगे क्या इंफॉर्मेशन और देगा, ठीक है। 100% क्रेडिट परचेज है, कैश परचेजेस कुछ नहीं है, ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया था अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट। On 1st April 2021, the stock level was raised to 30,000 and stock was maintained at this new level all throughout the year. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक लेवल बैलेंस शीट में कितना दिया, ओपनिंग स्टॉक कितना था, मतलब बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2021 कितना था स्टॉक, So stock was 20,000. 20,000। सो स्टॉक 20,000 से अभी कितना रेज किया था, 30 30,000. हाँ 213 बोला है, नॉट बाई 30,000, 230,000 मतलब क्या था, 20 से 30 बन गया, समझ गया। 10,000 increase. तो ये ओपनिंग स्टॉक होगा 1st April 2021 में इनडायरेक्टली 30,000 बना दिया, और थ्रू आउट द ईयर वही लेवल मेंटेन किया, तो इनडायरेक्टली मिड ऑफ द ईयर जाएगा, बोलेगा स्टॉक कितना है, वो बोलेगा 30,000, समझ गया। मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर मतलब 1st April में गया, मई में जाओ, 30th मई में जाओ, एक महीने के बाद, मतलब 2 महीने के बाद 30th मई में जाओ, बोलो स्टॉक कितना है 30,000, जून में जाओ कितना है स्टॉक 30,000, तो जुलाई में जाओ 30,000, सर ईयर एंड में जाओ स्टॉक कितना है, कितना होगा 30,000 ही होगा, 30,000. अंडरस्टैंडिंग। सो ऑल थ्रू आउट द ईयर 30,000 हो रहा है, तो इनडायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000। डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. यस सर। हाँ तो क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया हमको अभी। नेक्स्ट। Collection from debtors amounted to rupees 1,40,000, of which 35,000 was received in cash. 1 सेकेंड उधर तक वेट करो। कलेक्शन फ्रॉम डिटर्स कितना था, 1,40,000. कलेक्शन फ्रॉम डिटर्स इज 40,000. 1,40,000। नेक्स्ट। ऑफ विच 35,000 35,000 was वाज received रिसीव्ड इन कैश, 35,000 कैश में रिसीव किया है, तो मतलब बाकी बैलेंस 1,05,000 कैसे रिसीव किया है, वाया चेक और समथिंग, तो इसको बैंक बैलेंस बोलना पड़ेगा, अंडरस्टूड। बोल रहे 35,000 कैश में आया था, 1,40,000 कलेक्शन आ गया बोल रहा है, तो कैश में 35,000 आ गया, मतलब बैलेंस 1,05,000 बैंक बैलेंस, डायरेक्टली चेक दिया होगा, चेक जाके डिपॉजिट किया होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ो।
business expenses हम्म. amounted to rupees 20,000, of हाँ. which 5,000 was outstanding on 31st March 2022 हाँ. and 6,000 was paid by checks. हाँ, ये अच्छे से देख लेना. बिजनेस एक्सपेंसेस टोटल कितना था? So 20,000. हाँ, 20,000. 20,000. ओके, टोटल 20,000 है. Hmm. उसमें से आउटस्टैंडिंग मतलब 31 मार्च 2022 में कुछ आउटस्टैंडिंग है, कितना था? 5,000. 5,000. इसका मतलब है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब था 5,000 पेमेंट नहीं किया, तो इनडायरेक्टली 5,000 अनपेड, 5,000 नॉट पेड. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. 25,000 एक्सपेंसेस हुआ है लेकिन 5,000 पेमेंट नहीं किया, क्योंकि क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग ही है अभी तक, वो इंफॉर्मेशन दिया है. तो मतलब इनडायरेक्टली कितना पेमेंट किया था? कितना पेमेंट किया? 15,000. कितना? 15,000. हाँ, 15,000. अभी ये 15,000 में 6,000 चेक में पेमेंट किया बोल रहा है, 6,000 बैंक इनडायरेक्टली. बाकी जो 9,000 कहाँ से पेमेंट किया होगा? Cash. कैश. समझ गया? Yes, sir. समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. हाँ, नेक्स्ट. Analysis of the passbook revealed the payment to सर creditors. आप क्यों बाइफरकेट कर रहा है बैंक कैश बोल के? ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो एक बार, एसेट साइड कैश इन हैंड है ना Yes, sir. ओपनिंग बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक भी है. तो बैंक बैलेंस तो कैशियर चोरी करके लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो बैंक अकाउंट में रहता है. ये क्या किया, कैश बॉक्स से लेके गया, मतलब कैश अकाउंट में जो पैसा है. अभी कैश अकाउंट से कितना पैसे लेके गए हमको फाइंड आउट करने के लिए कैश अकाउंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? ओपनिंग कैश बैलेंस ले लो, कितना रिसीट्स आया था ले लो, कितना पेमेंट्स हुआ था लेस करो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, है कि नहीं? उतना वो चोरी करके लेके गया. समझ गया? दैट्स व्हाई आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ ऑफ दिस. इधर ही सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं है, इधर भी है. देखो, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स. कैश परचेजेस नहीं है, क्रेडिट परचेजेस ही है. अंडरस्टैंडिंग ना? नेक्स्ट. Analysis of the passbook revealed the payment to creditors rupees 1,35,500. पासबुक एनालाइज Personally, करने से ये हमको दिख गया. पासबुक मतलब इनडायरेक्टली बैंक अकाउंट का रेप्लिका है. पासबुक तो मतलब वही है ना, बैंक अकाउंट का है. तो बैंक अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है देखो. क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, बैंक अकाउंट में है ये सब. पेमेंट किया है, कितना था? 1,37,500 पेमेंट किया है. ड्राइंग्स है, पर्सनल ड्राइंग 7,500. कैश डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 71,500. कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्रेडिट पे. ये सब बैंक ट्रांजैक्शन है. नेक्स्ट. gross profit as per last year's audited accounts was 30,000. 30,000. लास्ट ईयर का हमको सेल्स देने से करंट ईयर का सेल्स मिल जाएगा, यस और नो? बिकॉज करंट ईयर का 20% ज्यादा है. वो बंदा अभी सेल्स नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है.
इनडायरेक्टली ये 25 रुपीज का अमाउंट कितना है बोल रहा है, हम सेल्स फाइंड आउट कर सकते ही है कि नहीं? पहले प्रीवियस ईयर का सेल्स फाइंड आउट करना है, तभी तो करंट ईयर सेल्स आएगा। तो प्रीवियस ईयर सेल्स के लिए हमको डायरेक्टली सेल्स अमाउंट नहीं दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया है। समझ गया? तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% पोर्शन है। अभी हमको सेल्स 125 का कितना होगा हमको चाहिए। समझ गया? अभी फाइंड आउट करो। ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 है। अभी दिस 30,000 इज इक्वल टू 25 रुपीज। एग्जाम्पल कॉस्ट इज 100, 25 रुपीज इज प्रॉफिट, 125 विल बी द सेलिंग प्राइस। तो अगर 30,000 इज इक्वल टू 25, नाउ कैलकुलेट द अमाउंट फॉर नाउ कैलकुलेट द अमाउंट फॉर 125। 125 का अमाउंट कितना होगा फाइंड आउट करके बताओ मुझे। 30,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 25, इधर क्रॉस कैलकुलेशन होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 30,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 25, So 1,50,000. 1,50,000। 50,000. हाँ, सेल्स इज इक्वल टू 1,50,000। दिस इज लास्ट ईयर सेल्स। इधर तक क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ, अभी इधर कॉस्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं? 30,000 इज इक्वल टू 25% पोर्शन है। अभी 100 रुपीज का कितना होगा वो भी फाइंड आउट करो। 1,20,000 होगा। दिस इज कॉस्ट, और यू कॉल इट एज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट 1,20,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट वो जो 25% 30,000 है, टोटल सेल्स 1,50,000 है। लास्ट ईयर का सेल्स 1,50,000 है, तो करंट ईयर सेल्स कितना होगा? कितना होगा नीलव? फास्ट। करंट ईयर सेल्स इज नथिंग बट लास्ट ईयर सेल्स प्लस 20% ना, तो इनडायरेक्टली 1,50,000 प्लस 20% कर सकते हैं, और 1,50,000 इंटू 120%। कितना है बोलो? 1,80,000। सर अभी 1,80,000 में कैश सेल्स कितना है बताओ मुझे। कैश सेल्स है कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है बताओ मुझे। इधर देखो, कैश सेल्स कितना था? 20%। क्रेडिट सेल्स कितना है? 20% कितना होगा 1,80,000 में? So 36,000. 36,000 इज द कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितना होगा? 1,44,000। समझ गया? कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स आ गया। अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट ड्राफ्ट कर रहा हूं, देख लेना अच्छे से। सर आपके पास सब डेटा है क्या ट्रेडिंग अकाउंट ड्राफ्ट करने के लिए? मैं चेक करता हूं। ओपनिंग स्टॉक कितना है पता है ना? कितना है ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? 20,000। So 20,000. हाँ वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? हाँ 30,000. 30,000, बिकॉज रोज टू 30,000 बोला है ना।
सेल्स कितना है बोलो? हाँ, So 1,80,000. 1,80,000, वेरी गुड. ग्रॉस प्रॉफिट पता है कि नहीं? टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? ग्रॉस प्रॉफिट बोलो. सर 30,000. 30,000 लास्ट ईयर का है. इस ईयर का कितना है देखो. So 20% on sales. 20% सेल्स नहीं होगा सीधा. 25%. अच्छा, 25% ऑन कॉस्ट, इसलिए 20% ऑन सेल्स बोल रही है. दैट इज Yes, ऑल्सो sir. करेक्ट. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. मैं क्या करता हूं, 1,80,000, 1,80,000 ना, दिस इज इक्वल टू 125. अभी मुझे 25 के लिए कितना चाहिए वो देख लेता हूं. 25, 20% इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज 25, 125 डिवाइडेड बाई 25 कितना होगा? 5 होगा, है कि नहीं? 20% इज ऑल्सो 5. 20% रॉन्ग है. 20% एक्चुअली 0.2 आ रहा है. ठीक है ना? इधर कितना है देखो ग्रॉस प्रॉफिट. नीलव, 20% रॉन्ग है. 20% लेने से कितना आ रहा है? हाँ, Sir, 1,80,000 पे लेंगे ना? क्या है? कॉस्ट के ऊपर 25% बोला है. कॉस्ट के ऊपर 25% है. नथिंग बट इधर देखो, 100 कॉस्ट है प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25 है. 125 सेल्स है. अभी 1,80,000 इज इक्वल टू 125. अभी मुझे 25 कितना होगा चाहिए? 1,80,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25, 36,000 होगा, है कि नहीं? 1,80,000 Sir, इंटू 20, 20%. हाँ, सेम. 20 20% भी ठीक ही है. आ रहा है sir. हाँ, 20% Sir, ठीक ये ही है नीलम. 125 वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर. सॉरी, सर सर अगर हम 25 और लोग 125 क्यों हुआ? समझा सर नहीं. सर अगर हम लोग 20% सेल्स के लेंगे तो वो तो कैश सेल्स हो जाएगा ना. 25% कैश सेल्स. हाँ, 20% कैश सेल्स है. मैं सेल्स कैश है क्रेडिट है वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ. मुझे प्रॉफिट कितना है वो चाहिए. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो चाहिए. ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैं इसलिए ये फॉलो कर रहा हूँ. मुझे सेल्स दिया था, ठीक है, सेल्स इज इक्वल टू 125 रुपीज. मुझे 25% का चाहिए होगा ग्रॉस प्रॉफिट के लिए. समझ गया ना? यस सर. हाँ. हाँ. हाँ सही. पर हाँ. बुक्स पे हाँ. 20%. सर जो बुक्स पे 20% दिया सेल्स का तो वो कैश सेल्स लिया होगा. 20% कैश सेल्स है, ओके, मैं एग्री करूंगा. कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों पे प्रॉफिट होते हैं ना. हाँ सर. हाँ, तो टोटल सेल्स इतना है. हाँ. इसमें आप बोल रहे 1,44,000 क्रेडिट सेल्स है, 36,000 ना कैश सेल्स है. हाँ सर. अभी इस सेल्स में ग्रॉस परसेंटेज, इस पर क्रेडिट सेल्स में भी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दोनों सेम ही है ना, क्योंकि क्रेडिट सेल्स या कैश सेल्स दोनों में प्रॉफिट होता है. हाँ सर. हाँ, इसलिए इधर 36,000 आ गया. है कि नहीं? हाँ सर. एक्सपेंसेस कुछ बोला नहीं है, एक्सपेंसेस छोड़ दो. अभी टू परचेजेस जो है वो बैलेंसिंग फिगर होगा, है कि नहीं? परचेजेस कितना है देखो. परचेजेस कितना है देखो.
दिया नहीं है, लेकिन इधर बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस होना चाहिए ना। सब आइटम्स आ गया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोला भी नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो मान लो, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो। तो अभी परचेजेस जो है वही बैलेंसिंग फिगर होगा। अभी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो, कितना है बोलो मुझे। 1,80,000 प्लस 30,000 तो माइनस 54,000। 36,000 माइनस 20,000, कितना आ रहा है? 1 लाख। 54,000। 1,54,000 is the purchases amount. This is working note number 1. पहले भी हमने कुछ किया था कैलकुलेशन, अगर वो अगर लेगा तो वर्किंग नोट नंबर 1 वो ले सकता है। अभी परचेजेस पूरा कैश क्रेडिट परचेजेस ही है, समझ गया। हमको अभी ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, हमको सिर्फ अभी P&L अकाउंट बनाना है, समझ गया। बाकी वाला एक बार ट्राई कीजिए घर में। कल मैं बाकी सम कर दूंगा, टाइम हो गया अभी, ठीक है। लेकिन बाकी सम ट्राई कीजिए घर में। मैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट तक आ गया, ठीक है। कैश परचेजेस मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट एक ड्राफ्ट करना है, तभी हमको क्लोजिंग कैश बैलेंस क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा, है कि नहीं। दूसरा है ओपनिंग डेटर्स लेके ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल्स है ना, उसको भी लेके पेमेंट किया था ड्यूरिंग द ईयर, उसको भी लेके क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस फाइंड आउट करना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स बैलेंस ले लो, ड्यूरिंग द ईयर टोटल 100% क्रेडिट परचेजेस है तो वो भी ले लो। पेमेंट कितना किया था पासबुक में दिया था अमाउंट, वो ले लो। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है आ जाएगा, समझ गया। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स बैलेंस, क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी है कि नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी है, समझ गया। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा कैश अकाउंट बैंक अकाउंट ड्राफ्ट करने से, ठीक है। ये सब जाके बैलेंस शीट में बिठा दो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे दिया, P&L अकाउंट बन जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कैपिटल में ऐड करो, काम खत्म, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। मेजर पोर्शन इधर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट ड्राफ्ट करना है, ये अकाउंट वर्किंग नोट मेजर पोर्शन है, ठीक है। मैं इधर से अगर कुछ डाउट होने से कल कंटिन्यू करूंगा, समझ गया। एनी Yes, डाउट्स? sir. No, sir. इसको 2 फार्मूला लिख देता हूं, अच्छे से लिख दीजिए। इसके रिगार्डिंग 2 फार्मूला मैं लिख देता हूं, लिख दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे आ गया इधर देखो, कॉस्ट कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बाकी जो बचा क्या था, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑल्सो इक्वल टू क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये पोर्शन 100 का, ये 100 कैसे आएगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करो, 125 माइनस 25 करो, 100 आ जाएगा, एक तरीका है। दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करो, तभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, समझ गए ना। एज्यूमिंग नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तब यह होगा, समझ गया। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दोनों ले लीजिए, नोटबुक में यूज होगा, ठीक है। कल हम कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू। Thank you, sir.